हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट सुपरवाइजर सिलेबस। दीज क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन यूनिट फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The word society derived from dash dash which language? Option A Greek, option B Latin, option C Roman, option D French. The word society is derived from. सोसाइटी जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज लेटिन। सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। It is not Greek, it is not Roman, it is not French, and it is not German. It is basically Latin language. The society is derived from Latin language. Question number 2. Question number 2. Who defined society as a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of money grouping and divisions, controls of human behavior and liberties? This ever-changing complex system we call society. It is the web of social relationships. Option A McEver and Page, option B Osborne and Nemkov, option C Robert Birstead, option D Bronislaw Malinowski. Who defined society is a system of usages and procedures of authority and mutual aid? किसने डिफाइन किया है ये जो सोसाइटी है? ये एक सिस्टम होता है, इसमें यूजेजेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, डिवीजन होता है, कंट्रोल होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है एंड लिबर्टीज़। एंड इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एंड वी कॉल देम सोसाइटी। इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये फेमस डिफिनेशन है मैकलेवर एंड पेज की। सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जो मैकलेवर पेज ने बोला है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैकलेवर एंड पेज is the correct option. It is not Osborne and Minkoff. It is not Robert Birstead. Option D is also incorrect. These are all incorrect. McEver and Page is the correct option. Who has defined society as a system of uses and procedures of authority and mutual aid, of money grouping and divisions, controls of human behavior and liberties. This is a definition which has given by McEver and Page. Start करेंगे question number 3. The book Society authored by option A Talcott Pearson, option B Saint Simon, option C McEver and Page, option D Herbert Spencer. The book Society is authored by, ये जो बुक है ये सोसाइटी किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज मैकलेवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Which is not a characteristic of society? Option A the range of social relationships, option B society is concrete concept, option C society involves both likeness and differences, option D physical conditions of social relationships. दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी का नहीं है? अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सोसाइटी इज कॉन्क्रीट कंसेप्ट। सोसाइटी कॉन्क्रीट नहीं होती है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है। Note this point. That means society is concrete concept is not a characteristic of society. These are characteristics of society. The range of social relationships. Society involves both likeness and differences. इसमें differences भी होते हैं, इसमें likeness भी होती है, इसमें cooperation भी होता है, conflict भी होता है, इसमें division of labor भी होता है, इसमें physical conditions of social relationships इसमें होते हैं, इसमें conditions होते हैं relationships के physical conditions. That means option B is the right answer. Society is concrete concept. Option B is correct. Society is concrete concept is not a characteristic of society. Question number 5. Question number 5. Dash dash has propounded the concept of Gemeinschaft and Gesellschaft. Option A G.C. Homans, option B C.H. Coley, option C पैटर बर्जर, ऑप्शन डी फर्डिनेंड टोनीस। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने जो कंसेप्ट दी है
जिमिनशाफ्ट एंड जिसेलशाफ्ट। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज फेर्डिनेंड टोनीज। इट वाज ए जर्मन sociologist who has given the two concepts जिमिनशाफ्ट एंड जिसेलशाफ्ट। जिमिनशाफ्ट कम्युनिटी से रिलेट होता है एंड जिसेलशाफ्ट सोसाइटी से रिलेट होता है, याद रखना। जिमिनशाफ्ट कम्युनिटी से रिलेट होता है एंड जिसेलशाफ्ट सोसाइटी से रिलेट होता है या एसोसिएशन से रिलेटेड होता है, याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी? ऑप्शन ए हंटिंग एंड गैदरिंग, ऑप्शन बी पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी लेस डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी इम्पर्सनल रिलेशंस। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें? अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ लेस डिवीजन ऑफ लेबर। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होते हैं इसमें लेस डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द बुक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए जेफरी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी डी सेंडरसन, ऑप्शन सी प्रीतम सारोकुन, ऑप्शन डी जॉर्ज हर्बर्ट मेड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। द बुक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी ऑथर्ड बाय, ये जो बुक है ये किसने लिखी है एंड इसने किस ईयर में ये बुक लिखी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड आउट ए फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए इमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मेड, ऑप्शन डी रॉल्फ डेंड्रॉफ। आपको निकालना है फंक्शनलिस्ट सोशलिस्ट कौन सा है इसमें। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज इमाइल डर्कहाइम, इट बिलोंग्स टू फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। कार्ल मार्क्स belongs to conflict school of thought. George Herbert Mead belongs to interactional perspective, and Rolf Dendorf is also belongs to conflict school of thought. Emile Durkheim is only one functional sociologist that belongs to functionalism. Question number 9. Man is a social animal. Who said this? This is a very famous quotation which has given by Aristotle. Very simple question. Who said that man is a social animal, which has given by Aristotle, not Plato, not Socrates, not Saint Simon. Question number 10 देखेंगे, author of Folkways. Option A E.B. Taylor, option B W.G. Sumner, option C Malinowski, option D A. Betel. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज W.G. सुमनर, विलियम ग्राम सुमनर, हु हैज़ ऑथर द बुक फोकवेज। आप बताइए मुझे कमेंट में ये जो बुक है ये किस ईयर में इसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11, proximity to nature is a characteristic feature of option A agrarian society, option B urban society, option C industrial society, option D post industrial society. proximity to nature is a characteristic feature of, जो proximity होती है, जो close to close connection होता है नेचर के साथ, is a characteristic of future of, that is agrarian society, not urban society, not industrial society, not post industrial society. Physical proximity to nature is a characteristic feature of agrarian society. Question number 12. The total organization of social life within a limited area may be termed as option A community, option B an association, option C an institution, option D a society. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद ए लिमिटेड एरिया में बी टर्म्ड एज, इस क्वेश्चन का सीधे यहाँ आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए दैट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी इज एस एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ कोहरेंस. दिस डेफिनेशन इज आल्सो गिवन बाय मैकएवर एंड पेज. अगर हम यहाँ पर कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी इज ए एरिया ऑफ सोशल लिविंग विद इन ए लिमिटेड एरिया दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. इट इज़ नॉट एसोसिएशन, इट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट सोसाइटी. अगर हम सोसाइटी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल. क्वेश्चन नंबर 13. सोशल मोबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ऑप्शन ए अर्बन सोसाइटी, ऑप्शन बी रूरल सोसाइटी, ऑप्शन सी ट्राइबल सोसाइटी, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल सोसाइटी. जो सोशल मोबिलिटी होती है ये किस सोसाइटी का फ्यूचर है, इंपॉर्टेंट फ्यूचर है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादातर सोशल मोबिलिटी अर्बन सोसाइटी में होती है. दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सोशल मोबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
future of urban society. Question number 14. Dash dash is a process which indicates the adaptation of the modern ways of life and values. Option A, industrialization. Option B, modernization. Option C, westernization. Option D, none of these. Dash dash is a process which indicates the adaptation of the modern ways of life. यहाँ आपको सीधा पता लगनी चाहिए modern ways of life. जब कोई सोसाइटी अडॉप्ट करती है modern ways of life, and this process we call that is modernization. Modernization is a process which indicates the adaptation of modern ways of life and values. This is not westernization, not industrialization. If we define westernization here, westernization is a process which indicates to adopt the culture of western societies. Question number 15. Question number 15. Who criticized the concept of modernization? Option A, Yogendra Singh. Option B, M.N. Srinivas. Option C, Ram Page. अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे, हु क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इसको किस ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज M.N. Srinivas. M.N. Srinivas criticized the concept of modernization. Question number 16. Dash dash defends the concept of modernization. Option A, Yogendra Singh. Option B, Ketkar. Option C, Resli. Option D, Gate. अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज योगेंद्र सिंह. योगेंद्र सिंह डिफेंड्स द concept of modernization. M.N. Srinivas criticized the concept of modernization, and Yogendra Singh defends the concept of modernization. Question number 17. The process of globalization is achieved through option first, foreign investment. Option second, foreign trade. Option third, movement of people. Option fourth, all of the above. जो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस हुई है ये किस चीज़ से अचीव की गई है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबोव. फॉरेन ट्रेड से भी हुई है ग्लोबलाइजेशन अचीव, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी हुई है, मूवमेंट ऑफ पीपल से भी हुई है. These are all the causes in the process of globalization has been achieved. Question number 18. Amalgamation and rapid unification between countries can be identified as option A, liberation. Option B, socialization. Option C, globalization. Option D, प्राइवेटाइजेशन. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कंट्रीज़ के दरमियान जो भी रैपिड यूनिफिकेशन हुई है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सीधा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस एंड एमलगाइजेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज that can be identified as globalization. Question number 19. Globalization has created new opportunities of option A, employment. Option B, emerging multinationals. Option C, providing services. Option D, all of the above. ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी. इसने जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, इसने किस एरिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं? अगर आप में से वो स्टूडेंट होगा जिसने मेरे वीडियो देखे होंगे ऑलरेडी, वो इस क्वेश्चन का आराम से आंसर कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाया है. तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में इसने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं, एंड इसने एमर्जिंग मल्टीनेशनल्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं, इसने प्रोवाइड सर्विसेज भी दिए हैं. दैट मीन्स इसका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एमर्जिंग मल्टीनेशनल्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. दिस इज एमर्जिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. The process of rapid integration or interconnection between countries through free trade, free mobility of capital and labor is called option A, foreign trade. Option B, liberalization. Option C, globalization. Option D, privatization. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, the process of rapid integration of interconnection between countries
थ्रू फ्री ट्रेड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल लेबर इज़ कॉल्ड। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी प्रोसेस हुई है इंटीग्रेशन, जिसने एक इकट्ठे किया है कंट्रीज़ को इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेबर एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, जिसमें होता है आपस में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसने कंट्रीज़ को इंटीग्रेट किया है थ्रू ट्रेड, थ्रू मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अल्लाह हाफिज़।